Hello, welcome to my class, students. Today now we study lesson 4 from your book Flamingo, The Red Trap. This lesson is written by Selma Law and this lesson convey a universal message. The author believes that if by helping and kindness or sympathy we can change any person's heart, a person who is criminal and he was habit doing uh, old habits, old activities like that, stealing and begging, etc. So in this lesson we see there is a person and who made a rat trap of iron and sold them in a market, but this occupation, this business is not provides enough food for him, so that is why he started begging, and sometimes he also engaged in doing stealing. So in this lesson now we see the story in detail. Once upon a time, there was a man who went selling small rat trap of wire. He made them himself and businesses that was not profitable, so he had to restore to both begging and petty theft. His clothes were in rag, his cheeks were sunken, and hunger glimmered in his eyes. His wife sad and monotonous. His life was sad and monotonous. So, in this story, एक बार जो कि एक रेड ट्रैप जिसे अपन बोल सकते हैं पैडलर यानी योग फेरी वाला, जो कि खुद ही आयरन के रेड ट्रैप बनाता था और उनको जाके हर जगह इधर उधर जाके आसपास के एरिया में उनको बेचता था. बट दिस बिजनेस इज नॉट प्रोवाइड हिम सफिशियंट फूड. उससे वो ज़्यादा अपना रोजी रोटी और फूड वगैरह परचेज नहीं कर पाता था. दैट इज वाई ही स्टार्टेड बैगिंग and sometimes he also engaged in petty thefts. कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करता था. and his clothes were rags. और उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे. it means his condition is so bad. and cheeks also sunken, जो कि cheeks थे वो थोड़े से संक थे, घुसे हुए थे. and hunger glimmer in eyes. और उसकी आंखों से देखते हुए लगता था कि in really he was very hunger. बाकी में उसको वो बहुत ज़्यादा भूखा भी है और उसको बहुत ज़्यादा नीड्स भी है. सो द पेडलर वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया. वन डे व्हेन ही वॉज गोइंग फॉर सेलिंग द रेड ट्रैप, ऑन द वे ही बिकम वेरी टायर्ड. बहुत ज़्यादा थक भी गया था. एंड इमीजिएटली वन आइडिया स्टक इन हिज माइंड. और एक आइडिया उसके माइंड में स्टक करता है कि द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. कि ये जो वर्ल्ड है एक तरह से कुछ नहीं, केवल एक तरह से क्या है, ये भी एक रेड ट्रैप है. यानी ये एक पिंजरा है. जैसे कि जो रेड ट्रैप होता है जिसमें कि एक रेड है किसी लालच की वजह से यानी फूड की वजह से उसके अंदर एंटर करता है एंड देन ही नेवर कम आउट. और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता. और वो कब निकलता है, जब उसको अपन पूरा उसको मर जाता है या उसको अपन कुछ भी करते हैं उसके बाद ही. इन द सेम वे दिस वर्ल्ड जो है, दिस वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप. ये वर्ल्ड पूरा क्या है, एक तरह से रेड ट्रैप है. when among men who are being enter it and now he so many desire come out in front of it, like property लेना है और some luxurious things he had to purchase. So like this and now one by one so many things come out in front of it and then he fulfilled them and passed away from this world. So we can say this word is like a red trap. This idea stuck in his mind one day when he was going to sold a red trap. Its only purpose was to set beds for people. Rich joy, shelter, food, clothing were just nothing but a tempting bait. ये सारी चीज़ें जिस लोग होते हैं, रिचेस लोग होते हैं, उनकी जैसे सपोज कीजिए क्लॉथिंग है, जॉय है, लग्जरियस थिंग्स, ये सब क्या है, जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप. ये भी सब एक एक तरह से टेम्पटिंग वाली थिंग है जिसमें कि एक पर्सन एक बार एंटर कर जाता है एंड देन वन बाय वन सो मेनी थिंग्स कम आउट. Anyone who lets him tempted by their ways, the red trap closed in one room. एक बार उसमें एंटर करता है and then he never come out. The world had never been kind to the peddler.
It gave him joy to think ill of it. It became the cherished pastime to think of people who were caught in the dangerous snare. There were others who were still circling around the pit. और इस तरह से और भी कुछ लोग होते हैं उसके पास और कोई इसके अलावा कोई इसके पास चारा नहीं होता. And then he one by one fulfilled one desire. So one evening, one dark evening, he was wandering along the roadside, and so one day he was very tired after doing sailing the red trap, and then he saw a door. उसने एक घर देखा and now he knocked at the door. और उस डोर पे जाके वो नॉक करता है. He knocked at the door of a little grey cottage. An old man greeted him. He was happy to get someone to talk to his loneliness. He served him supper. The peddler played mazurkas with his host until bedtime. यानी जो पैडलर जब एंटर करता है उस ओल्ड मैन के रूम में, घर पर जब नॉक करता है, दैट ओल्ड मैन वेलकम हिम एंड सपर यानी रात को उसको खाना भी खिलाता है, इवन उस गेम भी खेलता है, एंड जब तक कि वो बेड पे नहीं जाते उस समय तक दोनों बातें करते हैं और खेलते भी हैं. The old man went to the window. He took down a leather pouch which hung on the nail in the window frame. He picked out three wrinkled 10 banknotes. He held them before the eyes of his guest. He stuffed them back into the pouch. यानी पहले तो वो both peddler and that old man both talking to each other. So they talk so many topics also. They discuss so many topics. And after that, when they started to go to the bed, the old man put some money. उसने एक पाउच जो कि उसके वॉल पर विंडो के पास पर पाउच था, उसने अपने कुछ पैसे निकाले, यानी 3 करोड़ एक काइंड ऑफ जो कि करेंसी है, उसने उसमें से निकाले जो कि क्रम्बल हो रहे थे, नहीं गुबरे हुए थे, उनको लेके उसमें रखा. एंड दैट वाज ऑल सीन, जो कि सारा कुछ कौन देख रहा था, जो कि पैडलर देख रहा था. एंड दैट ओल्ड मैन एंड पुट द सेम पाउच ऑन द सेम प्लेस. उसने उसी स्थान पर उसको रख दिया. अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट हैपन, सो इट and knocked. He held them. He stuffed them back into the pouch. The next day, both man and peddler left the cottage at the same time. For half an hour later, the red trapper peddler stood again at the window. He smashed a pen and got hold of the pouch. He took the money and thrust it into the pocket. He hung the leather pouch back in its प्लेस. अब क्या हुआ, दोनों अर्ली इन द मॉर्निंग पैडलर और जो ओल्ड मैन दोनों अपने घर को छोड़ते हैं और दोनों अपने दे डाइवर्ट फ्रॉम देयर ओन पेस और दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं. बट द पैडलर ऑन हाफ वे यानी आधे रास्ते ही रिटर्न कम बैक, वो वहां से वापस आता है एंड ही स्मैश्ड द विंडो. वो उस विंडो को तोड़ देता है, विंडो पेन को, जहां उसे मालूम था कि यहाँ पर उसने दैट नाइट जो ओल्ड मैन था उसने उसको वहां पर पाउच को रखा हुआ था. एंड दैट पाउच देयर वाज 3 करोड़ ऑल्सो. उसमें 3 करोड़ यानी पैसे भी हैं. तो उसने उसको स्मैश किया विंडो को और एंटर किया, वो पैसे निकाले एंड देन पुट द पाउच ऑन द सेम प्लेस. और उस पाउच को सेम प्लेस पे फिर से रख दिया. एंड ही हंग द लेदर पाउच सेम प्लेस. With the money in his pocket, he left quite pleased with his smartness. और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट सोच रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही बिना किसी को बताए, उसे पता भी नहीं लगा और उसने उसमें से पैसे निकाल लिए. बट ही वॉज अफ्रेड, लेकिन वो डर रहा था रास्ते में जाने से कि कहीं उसको ऐसा ना हो अगर वो हाईवे से जाएगा तो वो क्या होगा, कुछ लोग उसको देख लेंगे एंड दे डाउटेड ऑन हिम, और उसके ऊपर कुछ डाउट करेंगे एंड ही वॉज कॉट बाय द पुलिस, और क्या होगा, वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा. सो ही टर्न ऑफ द
he turned off the road into the forest. और फिर उसने डिसाइड किया वो रोड से ना जाके कहाँ से जाएगा, फॉरेस्ट वाले जो वे है, रास्ता है, वहां से जाएगा. It was a big and confusing forest. लेकिन that forest was so very confused and big also. To him, the word appeared to be big trap. अब जब वो उस फॉरेस्ट में, जब उसको रास्ता नहीं मालूम होता है, वो भटक जाता है, रास्ता नहीं समझ में आता, एंड देन ही थिंक्स दैट नाउ ही वाज हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्ड. वो सोचता है कि वो इस बार खुद ही फंस गया, किसमें, वर्ल्ड ट्रैप में, यानी लालच में फंस गया है. So he became very, and he had left himself before by bed and he had been caught. अब कहता इस बार वो खुद ही मोर बन गया और खुद उस जाल में फंस चुका है. Darkness was already descending over the forest. Finally, when he saw no way out, he sunk down on the ground. He was tired to death, but soon he heard the sound of hammers stalks coming from the iron mill. He gathered all his strength and dragged himself towards it. But अचानक से he heard a sound of striking. उसे कहीं से सुनाई पड़ी कि कुछ चीज स्ट्राइक किया जा रहा है, जैसे आयरन. So nearby there was also an iron mill also, and that sound coming from that side. So he moved from that side. अब उसी तरफ वो उस साइड में वो चलने लग जाता है. एंड नाउ ही रीच टू द आयरन मिल विद फुल एनर्जी, और वहाँ पूरे अपनी ताकत से वहाँ उसकी ओर चल देता है. दिस आयरन शॉप वॉज, जो मिल थी, दैट वॉज रामजो आयरन वर्क वॉज बिग प्लांट, जो कि रामजो का एक बहुत ही आयरन, जो कि बहुत बड़ी एक आयरन मिल थी. The master smith and his helper sat in the dark foggy near the furnace. Master and other जो servant थे, वो सब लोग उस जो furnace, जो भट्टी थी, उसके चारों ओर बैठे थे. And that peddler enter, और वो जो कि peddler था वो भी उसमें enter कर जाता है. But nobody pay attention towards him, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, because so many people also sit there. And because to warm themselves, अपने आप को गर्म करने के लिए, as it was the time of winter, जैसे कि ठंड का समय था, और अपनी गर्मी बॉडी को गर्म करने के लिए, वहाँ अपने आप को सेकने के लिए जो फर्नेस थी, वहाँ पर वो लोग आ जाते थे. So on account of all his noise, the blacksmith did not notice the peddler standing close to the furnace. Usually poor vagabonders came there to warm themselves in the winter, and he asked permission to stay, and blacksmith nodded his approval. और उसने परमिशन ली वहाँ पर, और ब्लैक स्मिथ ने उसको परमिशन दी आने के लिए कि वहाँ यहाँ पर वो अपने आप को वार्म कर सकता है, स्टे कर सकता है. The iron master came into the forest on his nightly round of inspection. जो कि आयरन मास्टर जो था वो रात को इंस्पेक्शन करने गए, जब वो वहाँ पर मूव हुआ, देखा, he saw the peddler in a dark and mistook him an old acquaintance. भाई उसको ऐसा लगा, आयरन मास्टर को लगता है शायद वो कोई उसका ओल्ड एक्विंटेंस है, यानी जान पहचान वाला पर्सन है. द पेडलर डिड नॉट नो हिज नेम, लेकिन पेडलर उसको नहीं जानता था, आयरन स्मिथ को. Nor did he ever meet that man, और कभी भी वो उससे मिला भी नहीं था. He told the iron master that things had gone downhill with him. The iron master mistook him an old commander of his regiment. यानी ओल्ड जो आयरन मास्टर वो सोचता है कि लगता है कि उसके साथ में, जब कभी वो आर्मी में था तो उसके साथ में वो रेजिमेंट में वो शायद उसके साथ एक कंपनी था, यानी वर्क करता था. एंड ही आस्क्ड हिम व्हाई ही लेफ्ट दैट जॉब, और उससे पूछता है कि तुमने उस जॉब को क्यों छोड़ दिया. He regretted that he should not have resigned himself from the regiment. वो कहता है क्या उसको वहाँ से रिजाइन नहीं देना चाहिए था अपने आप से. He invited the peddler to come home with
हिम। और इस तरह से आयरन मास्टर उसको इनवाइट करता है कि वो उसके घर चले और उसके साथ रहे। द वेगेबॉन्डर डिड नॉट वांट टू गो अलोंग विद हिम टू द मैनोर हाउस, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था कि अनजान व्यक्ति के किसी के घर में वो जाके रोके, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप को यानी किसी मुसीबत में ना डाल दे। So he did not want to throw himself voluntarily into the Lowenstein. Lowenstein यानी शेर की गुफा में, शेर की जो गुफा होती है उसमें वो जाना नहीं चाहता था, यानी वो अपने आप से मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। The Iron Master wanted to give them company at Christmas. और आयरन मास्टर उसको कंपनी देना चाहता था कि वो जो पैडलर है उसको कंपनी दे, इस बार क्रिसमस उसके साथ बनाए। द पैडलर रिफ्यूज टू गो विद हिम, लेकिन पैडलर मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं, उसे नहीं जाना। लेकिन दिस कन्वर्सेशन हियर्ड बाय द आयरन मास्टर डॉटर एलिडा, आयरन मास्टर की जो एक डॉटर थी वो ये सारा कुछ सुन रही थी। और केम टू द वो शी केम टू द पैडलर, और वो पैडलर के पास आती है। शी थॉट दैट द मैन वाज फ्राइटेड, वो सोचती है कि लगता है ये डर रहा है, दैट इज वाई ही नॉट एग्री टू स्टे विद देम। So she thought that the man was frightened. She looked at him and compassionately, बहुत ही उसके अच्छे से दया से उसकी तरफ देखा। She requested him to stay with him over Christmas Eve, कि वो क्रिसमस की एप तक वो उनके साथ रुके। He did not resist and followed the lady. अब वो इस तरह से वो उस लेडी को मना नहीं कर पाया। And next day was Christmas Eve, और दूसरे दिन क्या था, क्रिसमस एप था, और इसलिए वो वहाँ पर रुक जाता है। The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. The peddler stood there in a good suit that belonged to the iron master. Next day, जो आयरन स्मिथ ने उसके हेयर कट किए, शेव किया, और साथ में अपना एक उसको कोट भी दिया और उसको नहलाया भी। Now he was looking very handsome. अब वो बहुत अच्छा दिखाई देने लगा। The peddler stood. Now the peddler stood before the iron master in a broad daylight. अब वो उसको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। Now it was impossible to mistake him for an old acquaintance. फिर उसको लगा, रियलाइज हुआ आयरन मास्टर को, हाँ मैंने कुछ मिस्टेक की है, ये मेरा कोई एक्वेंटेंस नहीं है, ये कोई मेरी रेजिमेंट्स में आर्मी में ये मेरे साथ नहीं रहा है। So he felt he was in mistake. So he thundered at him. And the peddler saw at once that he was exposed. जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा वो ध्यान से, तो पैडलर को ऐसा लगा शायद उसने उसको पहचान लिया है कि वो कौन है, एक चोर है, बैगर है, और कहीं उसने उसको चोरी जो जहाँ से अभी की थी शायद वो पहचान गया है। सो ना ही वॉज अफ्रेड, और वो डरने लग जाता है। बट ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, ये वो कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। ही डिड नॉट वांट टू डिसीव एनीबडी, वो किसी को धोखा देना नहीं चाहता है, कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं तुमको जानता हूँ, और वो धोखा नहीं देता। ही हैड नेवर प्रेटेंड टू बी एनीथिंग देन अ पुअर पैडलर, ही हैड ओनली beggar to be followed his forest. He was ready to put on his old rags again and go away. अब वो रेडी हो गया, ठीक है मैं दोबारा से अपने कपड़े पहन लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो तुमको नहीं बोला था कि मैं तुमको जानता हूँ, और तुम बोल रहे थे कि तुम मुझको जानते हैं। सो नाउ ही रेडी टू गो। फर्स्ट आयरन मास्टर थ्रेटेड टू कॉल शेरिफ, उन्हें कि अगर तुम जा रहे हो तो रुको, मैं अभी यहाँ से तुमको पुलिस को बुलाना चाहता हूँ, शेरिफ को। बट देन ही आस्क्ड हिम टू गो अवे एट वंस, फिर कहता है कि नहीं ठीक है तुम जाओ यहाँ से। द आयरन मास्टर डॉटर वांटेड टू पैडलर टू स्टे विद हिम, पर लेकिन आयरन मास्टर की डॉटर चाहती है कि वो रुके और उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे। सो देयर वॉज नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही वॉज वेलकम। फिर वो सोचता है कि ऐसा संसार में कोई भी प्लेस नहीं है जब मुझे इस तरह से वेलकम किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ ये डॉटर है जो मुझे इतना जो उसका फादर है वो हमेशा नेगेटिव फीलिंग कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो यहाँ रुके, वो कह रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, थ्रेटन भी दे रहा है। बट उसकी जो डॉटर है वो उसको इतना बिलीव कर रही है और वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे, क्रिसमस सेलिब्रेट करे।
एंड देन पैडलर डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, और पैडलर डिसाइड करता है कि वो वहाँ से नहीं जाएगा और उनके साथ क्रिसमस एब सेलिब्रेट करेगा. सो so Iron Master daughter wanted to peddler stay with him. There was not a single place in the whole country where he was welcome. Everyone showed him the door. She wanted to have him stay and enjoy a day peace with them. She saw against chasing away men whom they had promised Christmas cheer. The man with the red cap said not a word. In the evening, the Christmas tree was lighted, and he had the Christmas feast and pottery. और शाम को उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से सभी ने मिलके. नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू अर्ली क्रिसमस सर्विस. और नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर है दोनों चर्च में जाते हैं प्रेयर के लिए. बट दे डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब पैडलर, लेकिन वो पैडलर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. सो दैट इज वाई दे डिसाइडेड टू लीव हिम अलोन एट होम. उन्होंने सोचा कि इसको घर पर ही छोड़ जाते हैं सोता हुआ. एंड अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च. और 10 बजे करीब वो वहाँ से वो लौट आते. द यंग गर्ल सैट डिजेक्टेडली एट चर्च. शी हैड हर्ड सेंशनल न्यूज. वहाँ पर जो डॉटर थी उसने कुछ एक न्यूज़ सुनी हुई थी, और वो न्यूज़ जो थी वो रिलेटेड किससे थी, पैडलर से. कि जो पैडलर है जो एक पर्सन है जो जो ओल्ड मैन था वहाँ से उसने चोरी की हुई है. और वो वहाँ से फिर एंड देन शी रियलाइज दैट मैन वॉज इन हर रूम. उसको रियलाइज होता है कि वो जो रेड ट्रैपर है वो तो उनके ही ठहरा हुआ है, उन्हीं को ही. एंड नाउ शी वॉज फ्राइटेड, और बहुत ज़्यादा डर जाती है. एंड बोथ फादर एंड डॉटर इमीडिएटली कम बैक टू देयर होम. और दोनों वहाँ से घर पर तुरंत वापस आते हैं. सो वन ऑफ द ओल्ड कॉप्टर हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन who went around selling red trap. The iron master asked the valet whether the stranger was still there. He had heard at the church that the man was a thief. The valet answered that the peddler had gone. पर लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो पता लगता है कि पैडलर वहाँ से जा चुका है. But he had not taken anything at ऑल विद हिम. और लेकिन वो घर से वहाँ से कुछ भी लेके नहीं गया उनका सामान. ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर मिस विलियमसन. पर लेकिन मिल विलियम्स के लिए वो कुछ एक पैकेट छोड़ गया है. द यंगर ओपन द पैकेज. और ये जो यंगर थी वो उसको पैकेज को ओपन करती है. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. जब वो एकदम से उसको ओपन करती है तो वो चीखती है खुशी से. शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप and in it lay 3 wrinkled 10 crore note. और उसमें वो देखती कि एक रेड ट्रैप है. inside the red trap there is also a 3 crore, यानी 3 जो करोड़ जो कि नोट थे वो उसके अंदर क्रम्पल किए हुए रखे हुए थे. and there also a letter in which he thanked मिस विलियमसन. और उसने मिन विलियम्स को बहुत उसमें थैंक किया हुआ था. ही थैंक फॉर बीइंग अ नाइस टू हिम एंड इफ वर अ कैप्टन ही डिड नॉट वांट हर टू बी रोब्ड बाय थीफ एट क्रिसमस. और उसने उसको थैंक किया कि उसने उतना उसके ऊपर इतना सिंपैथी दिखाई, उसको रहने के लिए जगह दी. एंड शी ऑल्सो रिटर्न अ लेटर की रिक्वेस्ट की कि उसमें जो 3 करोड़ जो है नोट्स है उनको वो जो क्रॉफ्टर है जो ओल्ड मैन है उसको जाके वो रिटर्न कर दे, क्योंकि उसने उसकी वो चोरी की थी उसने. ही हैड द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम. क्योंकि जो एक पाउच था जो कि विंडो के पास है वहाँ से उसने उसको चुराया था. इट सर्व्ड अ बेट फॉर पुअर वेंडर्स. द रेड ट्रैप वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रेड who would have been caught if they had not raised him the captor. So, if मान लीजिए अगर सपोज कीजिए अगर जो आयरन मास्टर की जो डॉटर थी
अगर वो भी उसके ऊपर सिंपैथी नहीं दिखाती तो शायद वो ऐसा ही रहता, उसके अंदर कुछ भी चेंजमेंट नहीं आता। तो वी कैन से दैट इफ वी शो अ सिंपैथी, लव एंड काइंडनेस टू समवन, एंड देन we can change the heart of that person. So this is the story of red peddler, and now I hope you understood this lesson. So I hope you like and subscribe my channel, and if you like my channel, and then comment. Have a nice day.